Hello and welcome. This is the fifth lecture of current electricity, and in this lecture we are going to start Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. So there are two laws due to Kirchhoff's. Two laws due to Kirchhoff's. The one is point rule, and the second is loop rule. ठीक है. जो पॉइंट रूल है, पॉइंट रूल इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अगर हम लोग पॉइंट रूल को देखेंगे, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and loop rule is principle of conservation of energy. ठीक है. About both the charge and energy, we know the charge can neither be created nor be destroyed, and also the energy can't be created and it can't be destroyed too. ठीक है. Just it can be changed from one to another form. ठीक है. तो point rule is the principle of conservation of charge and the loop rule is principle of conservation of energy. So we would see the point rule first. So the first topic is point rule. ठीक है. So the point rule says the algebraic sum of current meeting at any branch point, or you may call it junction of a circuit is zero. So let us see how this happens. अगर suppose this is one, this is the first connection, this is the second connection, and let us say this is the third connection. Suppose this is A, this is B, this is C, and this is D. ठीक है. This is the direction of current. Arrow is showing the direction of current. ठीक है. If I1 amount of current is flowing in CA, I2 amount of current is flowing in BA, and I3 amount of current is flowing in AD. Okay. So let us see what happens. We have two type of current. अगर हम लोग A को मान के चलें रेफरेंस, so I1 and I2 is coming towards A and I3 is going away from A. So basically I1 and I2 are incoming currents and I3 is outgoing current. ठीक है. So अगर हम लोग A को रेफरेंस मान के चलें, since A is the junction, so from A we can say I1 and I2 are incoming current and I3 is outgoing current. ठीक है. तो what loop rule says कि the algebraic sum of all current meeting at a junction or a branch of the circuit is zero. ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है. अगर हम लोग इनकमिंग करंट को कह दें पॉजिटिव, इनकमिंग करंट को लेट्स से वी कॉल इट पॉजिटिव, तो आउटगोइंग करंट क्या होगी? आउटगोइंग करंट वुड बी नेगेटिव. नाउ ऐड देम. Add all the currents at A. ठीक है.
So let's add. So for I1 positive will be used, for I2 positive will be used, but for I3 negative will be used because I3 is outgoing current. ठीक है, and this would be 0 as per the point rule of Kirchhoff's. ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3. ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा एक और कंक्लूजन हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, दैट इज एट अ ब्रांच पॉइंट द सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करेंट. तो पॉइंट रूल को भी मैं राइट एज पॉइंट रूल कैन बी स्टेटेड एज द सम ऑफ इनकमिंग current, or you may say total incoming current. So let us say total incoming current. The total incoming current is equal to total outgoing current. ठीक है, सो पॉइंट रूल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज ए टोटल इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट. ठीक है, तो ये रहा, एंड वी नो दैट करेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम. सो फॉर अ कॉन्स्टेंट टाइम, और यू में से इक्वल टाइम, ठीक है, फॉर कांस्टेंट और इक्वल टाइम टोटल करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट. सो लेट अस से I is incoming and IO is outgoing and T is what? Equal. So let us multiply T to the incoming current and to the outgoing current. So what? Q incoming would be equal to Q outgoing. और इस तरह से हमने देखा कि जो पॉइंट रूल है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है. ठीक है, सो आई थिंक द लूप रूल ऑफ किरचॉफ्स इज क्लियर. Sorry, the point rule of Kirchhoff is clear. The next rule of Kirchhoff is the loop rule. Loop rule of Kirchhoff's. ठीक है. So what loop rule says? Loop rule says the algebraic sum of EMF in a closed circuit or a loop is equal to sum of product of current. So let me write it firstly. The algebraic sum of EMF in a closed electric circuit is equal to the sum of current and resistance, the sum of current and resistance, and this is based on the principle of conservation of energy. ये हमने already ऊपर देखा हुआ. So to demonstrate the loop rule, let us draw one electric circuit and try to see what happens. So this is a cell with internal resistance and this is a cell with internal resistance. Okay. So this is cell E1, this is cell with EMF E2, the internal resistance is R1, the internal resistance is R2 and this load resistance is R. Let us say this point is A and current is flowing in this direction. So let's move on the circuit. So this is VA. Now we are moving on the circuit in this direction and the direction of current is also this. So the direction of our movement and the direction of current is same. So the drop would be negative and magnitude would be IR. Next, move ahead and we come to this position. So the drop would be what? IR2 and sign would be negative. यहाँ पे higher to lower potential, so this would be negative, that is
minus E2. Now here the direction of current and direction of movement is same, so magnitude would be IR1 and the sign would be negative. Here negative to positive potential, so this would be plus E1 and we reached at A. So VA to VA would be cancelled. So what happens? E1 minus E2 is equal to IR plus IR1 प्लस IR2. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि जो सम है EMF की एंड द सम ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल. बट यू में से कि यहाँ तो सम है ही नहीं, दिस इज द सब्ट्रैक्शन. तो मैं कहूँगा कि अगर इन दोनों सेल्स को हम लोग देखें, दिस इज E1 एंड दिस इज E2, so the sense of EMF is opposite. Here the sense of EMF is in this direction and here the sense of EMF is in that direction. Here is towards the left, here is towards the right. Since the sense of EMF is in opposite direction, so instead of addition, subtraction happened here and the cell with higher EMF will dominate and the final current direction of current will be according to the cell that is having the higher EMF or that cell which is dominating in the circuit. आगे हम लोग जब करेंगे उसमें देखेंगे कि हम लोग डायरेक्टली अगर दो या दो से ज़्यादा सेल भी है तो हम लोग सेंस को देख के डायरेक्टली हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि करंट की डायरेक्शन किधर होने वाली है. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज पॉइंट रूल एंड द किरचॉफ सेकेंड लॉ दैट इज लूप रूल. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने डायरेक्टली, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो या फिर कोई भी या फिर कैपेसिटर हो, वहाँ भी किरचॉफ्स के रूल हैं. तो आप किरचॉफ्स रूल लगा के बेशक थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, बट यू मे सॉल्व इट. किरचॉफ्स रूल एक ऐसा टूल है दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिकली सर्किट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और इनफैक्ट कैपेसिटर्स ऑल्सो. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. Our next topic would be charging and discharging of cells. Charging and discharging of cells. ठीक है, so let us see what happens. So this is our topic. यहाँ पे हम लोग दो सर्किट देखने जा रहे हैं and then we will see which cell is getting charged and which cell is getting discharge and then we will write the conclusion over here. So we will leave some space and start from here. ठीक है, so हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करते हैं. दिस इज द लोड रेजिस्टेंस and let us say this is the cell with internal resistance and this is a cell with some internal resistance. ठीक है, let us say this is 30 volt and this is 12 volt, this is 1 ohm, this is 1 ohm and this is 4 ohm. ठीक है, नाउ अब हमारे पास दो मेथड हैं ये पता करने की कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा. इधर करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन और करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. तो एक मेथड है हमारा कि लेट अस से current will flow in this direction and proceed with the circuit equation. We can write the circuit equation, we already wrote many times, so I think आप लिख सकते हो. तो कोई भी करंट का डायरेक्शन आप मान लो, आपको मानना है सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. अगर आपको मानना है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B तो आप वो भी मान सकते हो. आपको मानना है करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू A, आप वो भी मान सकते हो. सर्किट पे मूव करो, आपको ऑटोमेटिकली अगर आपने सही सपोज करा है द करेंट यू विल गेट वुड बी पॉजिटिव. अगर आपने गलत एज्यूम करा है देन द करेंट यू वुड गेट वुड बी नेगेटिव. ठीक है, तो वन वे ये है कि आप इस तरह से कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे कैसे किया जा सकता है. सो लेट अस से दिस इज़ B एंड दिस इज़ A जैसा कि हमने माना था. ठीक है, और पहला और दूसरा दोनों तरीके से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है कि करंट की वैल्यू होगी कितनी. सो हमने मान लिया कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो द रेड वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो लेट्स मूव ऑन द सर्किट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम B.
ठीक है, बी से स्टार्ट करा एंड वी आर मूविंग, ओके, वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, बहुत हमने साथ मूव कर लिया, इसमें हम लोग अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, सो लेट अस मेक आवर डायरेक्शन इन ब्लैक कलर। सो ब्लैक इज आवर direction of movement and red is the direction of current. So let us write the equation. So VV, then we reached at the load resistance. अब यहाँ पे करंट के अपोजिट चल रहे हैं हम लोग, so the sign would be what? Positive, and drop would be what? 4I, IR, and R is what? 4, so this would be 4I. Then we reached at this internal resistance. Our movement with respect to current is opposite, so this would be positive, and the drop would be what? 1 into I, that is I. ठीक है, देन सेल पे आ गए हम लोग, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, सो दिस वुड बी व्हाट? नेगेटिव, दैट मीन्स -12 वोल्ट। यहाँ पहुँचे हम लोग, द डायरेक्शन इज अपोजिट, सो दिस वुड बी पॉजिटिव, एंड द ड्रॉप इज व्हाट? 1 into I, that is I. Next, this is negative, this is positive, so we are moving negative to positive, so this would be what? Plus 30 वोल्ट, और हम लोग कहाँ पहुँच गए? VB पे। ठीक है, so VB to VB is cancelled. Now 4I plus I plus I minus 12 plus 30 is equal to 0. So 6I would be minus, 6I plus 18 is equal to 0. 6I equal to minus 18, I equal to minus 3 एम्पियर। ठीक है, सो -3 एम्पियर आने का मतलब क्या है? -3 एम्पियर आने का मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट माना था दैट इज़ रॉन्ग, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इसके अपोजिट। हमने माना था करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, but actually में current will flow from B to A, so our supposition was wrong. We have assumed the direction of current in opposite direction. तो आप किसी भी डायरेक्शन में जूम कर सकते हो, जो रिजल्ट आएगा अगर पॉजिटिव आ गया तो योर एजम्पशन इज राइट, अगर निगेटिव आ गया सो जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा जो मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का वो ये है, मैं जल्दी से इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। So this is 4 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 30 volt, this is 12 volt. ठीक है, now what is the sense of, this is cell E1 ना, and this is cell suppose E2. So what is the sense of EMF of E1? So this is negative, this is positive, हमने already पढ़ा हुआ है कि sense of EMF of a cell is that direction in which the cell will send the current if acting alone in the circuit. अगर ये सेल E1 सपोज करिए कि इस सर्किट में अकेला एक्ट कर रहा होता तो ये करंट किधर भेजता? इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द सेंस ऑफ EMF। नाउ व्हाट इज द सेंस ऑफ EMF ऑफ E2? सो दिस इज द सेंस ऑफ EMF। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव सेंस ऑफ EMF? सो दिस सेंस ऑफ EMF इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज टुवर्ड्स राइट, तो which will dominate? So E1 will dominate because E1 is having 30 volt and E2 is having 12 volt as EMF. ठीक है, so 30 volt will dominate, so E final or E effective would be what? 18 volt and direction would be what? Towards left. So effective current किधर flow करेगी? In this direction, है ना? तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो E फाइनल निकला हमें कितना? 18 वोल्ट, एंड दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग को थोड़ा बहुत सीरीज कॉम्बिनेशन तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है जस्ट अभी जान लीजिए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स आर एडेड अलजेब्रिकली और लीनियरली। सो आर टोटल और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 4 + 1 + 1 दैट इज 6 ओम, एंड द करेंट इज 18/6 दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, बट ये हमने बस करंट निकाला है। अभी जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमने नहीं करा। सो एक बार फिर से हम लोग सर्किट को ड्रॉ करते हैं फटाक से। सो दिस इज आवर सर्किट, सो दिस इज द सर्किट वी हैव सीन। दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 1 ohm, दिस इज 4 ohm एक्चुअली, दिस इज 30 वोल्ट एंड दिस इज 12 वोल्ट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे विच सेल इज गेटिंग चार्ज एंड विच सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज, ठीक है। सो दिस इज द सेंस ऑफ ईएमएफ of E1, suppose this is E1, this is E2, and this is the sense of EMF of E2. Now what is the direction of current? We are denoting by black color. So this is that current, this is the direction of current, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि this is 30 volt, this is 12 volt and E1 will dominate ना, E1 will dominate. सो इफ E1 विल डोमिनेट, एक सिंपल सा बात करो आप कि आप जा रहे हो अपने बड़े भाई के साथ, ठीक है, आप कहीं गए, आपने खाना खाया। सो जनरली व्हाट हैपेंस, द बिग ब्रदर विल पे, इफ ही इज पेइंग तो ही विल पे फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो ही विल गिव यू सम रुपी, ठीक है। यहाँ पे भी वही होता है, सिंस दिस इज बिग so this will dominate and this will give its energy to the circuit, ठीक है। तो since this cell is giving its energy to the circuit, so this will get discharged and this cell which is the younger brother, इसे अपनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बदले में जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का, अब ये बड़े भाई हैं, ये पैसे बांट रहे हैं, तो इन्होंने खाने का भी पैसा पे करा और इनको भी पैसा, छोटे भाई को भी पैसा मिल गया। सिमिलरली यहाँ भी होता है कि दिस इज़ द यंगर ब्रदर, इसको खुद के पैसे खर्च नहीं करने पड़े, इन्होंने अपना एनर्जी नहीं दिया, बल्कि जो एनर्जी की फ्लो हो रही थी इन्होंने उसमें से खुद कुछ अपने लिए बचा लिया। सो दिस विल बी चार्ज्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो सेल थे हमारे कुछ इस तरह से, दोनों में अगर मैं बताऊं दिस वाज द सेंस ऑफ ईएमएफ एंड दिस वाज द सेंस ऑफ ईएमएफ, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ। तो क्या देख रहे हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सेंस ऑफ ईएमएफ इज सेम देन द सेल विल डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट and sense of EMF is opposite, then the cell will be charged. So this is getting discharged and this is getting charged, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं आराम से, जो जगह हमने छोड़ी थी। तो चार्जिंग का क्या है, चार्जिंग का है if sense of EMF and direction of current is same, the cell will be charged, cell or is charged, ठीक है। but if sense of EMF, sorry, this would be opposite, गलत लिख दिया है मैंने ये। इफ सेंस ऑफ ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, द सेल इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है। जो फिगर हमने वहाँ बनाए थे वो हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। सो दिस वाज द सेल, दिस इज सेंस ऑफ ईएमएफ एंड दिस वाज करंट, सो दिस इज डिस्चार्जिंग। यहाँ पे क्या था, this was cell, this is current and this was sense of EMF, so this is getting charged, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ करंट आप चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ऑफ समझ चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये टॉपिक मैं आपसे एक कंसल्ट करने के बाद पढ़ाऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें मैं प्रूफ करूं, सेल जो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है उसको मैं प्रूफ करके आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, या फिर बिना प्रूफ किए जो फॉर्मूला है उसको लिख दूं सीधे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उसकी ज़रूरत आपको है कि नहीं। आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से मैं, अगर प्रूफ चाहिए होगा तो आई विल गिव यू द प्रूफ एंड जो होलिस्टिक वे में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट वुड बी बेटर। अगर टाइम का
डिफिशियंसी है, ऑफ कोर्स टाइम की डिफिशियंसी है ही, तो मैं सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लिखूंगा एंड वी विल डू सम क्वेश्चन और हम लोग सीधा आगे टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।